So recording चालू झालेली आहे. Welcome you all. Welcome to our new lesson, that is Europe and India. We are going to know about the Europe and India because whenever we want to study for the modern Indian history, at that time there are some points that inspired by Europe movements. So if we go for the first we can say the stanza, we will see that during the modern period, the various happenings, okay, the various things are happening in Europe and had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the event happening in Europe during the period. ओके, तो उन्हें क्या कहना है कि उनको यही बात कहनी है कि अगर हमें इंडिया के मतलब मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया के बारे में अगर हमको जानकारी लेनी है तो हमें पहिले सबसे पहिले युरोप में कोणत्या घटना घटी आहे, युरोपमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी घडलेल्या आहेत त्याबद्दल आपल्याला जाणून घेणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो मग आपण बघूया की कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत जे युरोपमध्ये घडलेले आहेत आणि जे इंडियावर इम्पॅक्ट करतात आहेत. ओके, सो वी विल गो फॉर द फर्स्ट थिंग, दॅट इज पिरियड ऑफ Renaissance. So what is Renaissance? We will go for this. Renaissance means what? That is reformation, recreation, and redevelopment. So we can call this Renaissance. So in the history of Europe, the last phase of medieval period. Okay, so in the history of Europe, the last phase of medieval period, the 13th and the 16th centuries, known as the period of Renaissance. So what does that mean? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब मेडिवल हिस्ट्री का एंड का पॉइंट, द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड, दैट इज द 13th and 16th century is known of the period of Renaissance. During during this period, reformation. During this period, reformation, religious reform movements, and geographical discoveries laid the foundation to the modern India. तो उस पीरियड में क्या हुआ कि रिलीजन रिफॉर्मेशन प्लस मॉडर्न रिफॉर्मेशन, उसके साथ साथ जोग्राफिकल रिफॉर्मेशन और जोग्राफिकल डिस्कवरीज, आई मीन टू से जोग्राफिक डिस्कवरी, ऐसे कुछ घटनाएं घटे जिन्होंने मॉडर्न एरा का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री टाइम का उन्होंने फाउंडेशन रचा था, उन्होंने एक स्टार्टिंग किया था, वी कैन से दैट. So hence this period is known as the age of Renaissance. So let's go for the next. Then during this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was the revival of Greek and Roman tradition, which gives the movements to overall, which gave the movement to overall development. So what does that mean? So we will get to know that during this period in the field of art, okay, art and architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition, which gives the momentum to overall development. So what does it mean? The Roman and Greek tradition, अपन जब बघायला गेलो तर रोमन एंड ग्रीक ट्रेडिशन ऐसे थे कि जो फिलोसॉफी, आर्किटेक्चर और आर्ट में थोड़े डेवलप थे और उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट में उन्होंने उसको पुश दिया. तो ये उनको कहना है that during this renaissance, the we can say the humanitarianism, humanitarianism, and that is called as manavtavad, means humanity, we can say, or the giving the special respect or special, we can say, importance to that things, was given the great impact. Then there was a changes in the outlook of treating each other as a human being, and instead of religion, the man became the center of ideology. So we can see here, the central point of all ideologies. Please mute yourself. Yeah, mute. Okay. So we are talking about, okay, mute कर बेटा. हाँ. Okay. So we are talking about कि जो हम लोग रिफॉर्मेशन देख रहे हैं, जो रेनेसेंस देख रहे हैं, उसमें क्या हुआ था कि जो ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन है, उन्होंने पुश दिया था. किसको पुश दिया था? आर्कोलॉजी और फिलोसॉफी को उन्होंने पुश दिया था. ओके, उसके साथ साथ उन्होंने जो ह्यूमैनिटी थी और जो मानवतावादी हम लोग कहते हैं कि जिनको इम्पोर्टेंस मिल रहा, मतलब पहले कैसा होता था कि आपको अगर हमने मतलब हिस्ट्री पढ़े रहिए तो आपको पता रहेगा कि पहले जो रिलीजन था, रिलीजन इम्पोर्टेंट वाज सो मच देन दिस, देन द ह्यूमन इम्पोर्टेंस. तो इस जो पीरियड था, ये जो पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन था, उसमें क्या हुआ था कि इंसानियत को ज्यादा से ज्यादा
importance देने आई, or the man becomes the center point of all ideologies. Then reform movements spread through all the sectors of human life, through knowledge, science, as well as the different section of arts. So we can observe the discoveries of reform movements. ओके सो ये क्या बोलना चाह रहे कि वही रिफॉर्म्स थे, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ एक बेसिकली कुछ फील्ड के लिए उन्होंने रिफॉर्मेशन नहीं था, तो उस रिफॉर्मेशन का जो हम लोग बोल सकते थे इफेक्ट, वो इफेक्ट ह्यूमन लाइफ्स में धीरे धीरे साइंस और नॉलेज इन सभी सेक्टर्स में पढ़ने लगा. द आर्ट एंड द लिटरेचर ऑफ रेनेसेंस पीरियड depict sentiments एंड द इमोशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सो जो आर्ट एंड लिटरेचर था, तो उन्होंने क्या किया, वो अभी ह्यूमन सेंटिमेंट मतलब ह्यूमन के जो इमोशंस है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे. बाद में उस लिटरेचर में उनका वो हम कह सकते हैं कि उसका भी हम लोग उसका जो सब ये था, we can call it entry point. So if we go for the next thing, the literature was produced in the local language for the better understanding to the common people. During 1450 AD, Johannes Johannes Gutenberg, okay, the Johann Gutenberg from Germany discovered the printing press. During the discovery, the new ideas, concepts, and the knowledge reached to all the sectors ऑफ सोसाइटी. तो मुझे क्या कहना था कि आर्ट एंड लिटरेचर में जिस प्रकार के रिफॉर्म आ रहे थे, वो रिफॉर्म्स में इंडियन जो इमोशंस है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा. और उसी के साथ साथ जो हमारे जोहान्स गुटनबर्ग है, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जिसके वजह से न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट, न्यू नॉलेज हर मतलब हम लोग कह सकते हैं समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा था. Then we have the religious reform movements. Okay, so what is that? So we will get to know. The independent intellectual attack the old religion ideology from Roman Catholic Church. So वो क्या बोल रहे कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो स्कॉलर लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि रोमन कैथोलिक के जो ओल्ड आइडियोलॉजी थे, जो हम लोग बोलते कि वो धर्म के ऊपर जो वो हम लोग प्रीस्ट, वी विल सी the Christian priests were taking the advantage of ignorance the people and were indulged the unnecessary rituals. So what does that mean? That means कि जो priest थे, Christian priest थे, वो आदमी का जो अज्ञान होना था, जो उनको नॉलेज नाही था, हम लोग कहते अडाणी आदमी, अडाणी माणसाचा ते लोक फायदा उचलत होते आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी, स्वतःचा स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी धर्माचा ते वापर करत असतात. तर ही जी आयडियोलॉजी होती त्यांना काय इंटेलेक्च्युअल्सनी आपण बोलू शकतो की अटॅक केला. आणि त्यानंतर दे लुटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलिजन. तसं त्यांनी ते शोषण करत होते. म्हणजे कोण? प्रिस्ट लोक. जे प्रिस्ट लोक होते ते माणसाच्या अडाणीपणाचा फायदा उचलत असतात, त्यांना धर्माबद्दल चुकीच्या गोष्टी सांगत असतात. तसंच ते लोकांची लूटमार करत असतात, त्यांना लुटत असत धर्माच्या नावाखाली. आणि या गोष्टीच्या अगेन्स्ट जे पण आपण आवाज उचलला गेला त्यालाच रिलिजन रिफॉर्म मुवमेंट असं म्हणतात. ड्युरिंग दिस मुवमेंट द ह्युमन फ्रीडम अँड रॅशनलिझम गेन मोर इम्पॉर्टन्स. ह्याच्या म्हणजे काय, माणसाचं फ्रीडम किंवा माणसाचं स्वातंत्र्य याला जास्तीत जास्त इम्पॉर्टन्स देण्यात आला होता या मुवमेंट्स नंतर. ओके, सो तर परत एकदा तुम्हाला सांगतो रिलिजन रिफॉर्म मुवमेंट्स म्हणजे काय. रिलिजन रिफॉर्म मुवमेंट मध्ये हेच की जब भी क्रिश्चियन प्रीस्ट लोग जो अडानी लोग थे और जिनको ज्ञान कम था, उन लोगों का अननेसेसरी रिचुअल मतलब गलत बातें बता के उनका लूट किया करता था, या फिर उनको उनका उनका जो अडानीपन था, उनको जो नॉलेज नहीं था, उनका वो फायदा उठा रहे थे. तो वो जो आइडियोलॉजी थी, वो जो उनका स्वार्थीपना था, उनको कुछ इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स ने एक अटैक किया और उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई. तो दैट्स द कॉल्ड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. देन वी हैव द जोग्राफिकल डिस्कवरीज. So what does that mean, geographical discoveries? Why there was the need for this? So we will know about that. In 1453 AD, the Turks, Ottoman Turks, okay, Ottoman Turks conquered the Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. So we can say the Byzantine Empire जो था, त्याचा capital होतं कॉन्स्टॅन्टिनोपल.
दॅट इज इस्तांबुल आपण त्याला म्हणतो. जर आपण जर मी तुम्हाला मॅपमध्ये तुम्हाला व्यवस्थित दाखवतो. सॉरी. So this is the map of our world. Here we have the Asia. Okay, this is Asia, and this is we can say Europe. So इस्तांबुल हा इस्तांबुलचा सर कॉन्स्टँटिनोपल आपण त्याला म्हणतो. कॉन्स्टँटिनोपल तो सिटी आहे एक्झॅक्टली इथे या पॉइंटला. ओके, या पॉइंटला. आणि हा काय करतो, जे तुर्कीज लोक होते, द तुर्कीज वॉज हिअर ॲट दिस साइड वी कॅन से द राईट साइड आपण बघूया. द तुर्कीज वॉज हिअर. मी तुम्हाला परत हे करून दाखवतो. सो तुर्कीज वॉज हिअर. हिअर वॉज द तुर्कीज and here was the European countries and here is the Istanbul. So ये जो रूट था, that route was important for the trading, और ये जो रूट था वो एक ही रूट था व्यापार करने के लिए. और वो जो तुर्किस थे, कौन से तुर्किस हमने बोला था, so you just hold on, which Turkish was there? That Turkish was autonomous Turkish. बराबर, ऑटोनॉम तुर्की नहीं था. उन्होंने क्या किया था, ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता हम बोलते हैं, ये जो सिटी है और उसका जो रास्ता था वो उन्होंने बंद कर लिया था. ओके, तो वो बंद करने के कारण उनका जो व्यापार, जो ट्रेडिंग चल रहा था, वो ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा था. इसके वजह से उनको न्यू मतलब नई जगह और नई जगह प्लस नए रास्ते ढूंढने की उनको जरूरत पड़ी. Okay, so that's why we can say the geographical discoveries takes place. If we read this properly, then we will get to know the overland trades ritual joining Asia and Europe went through this city, right? Since the Turks blocked this route, जैसे मैंने आपको बोला था कि तुर्कियों ने वो जो रास्ता था बंद कर लिया था, there was the need of finding the alternative trade routes for the European countries to reach the Asia. ओके, तो मैं जैसा आपको मैं बताता, देखो कि वो रास्ता बंद होने के कारण यूरोपियंस को नए रास्ते एशिया के तरफ जाने के उनको ढूंढने की जरूरत पड़ रही थी. सो दिस लीड्स द न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, जिसकी वजह से नया ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में डिस्कवरीज हम लोग बोल सकते हैं कि एक्ट आई थी. ओके, सो बिफोर दैट, बिफोर गो टू द नेक्स्ट, वी विल सी the one person, we will know about the one person, that is Leonardo da Vinci. Who was he, and what is his name? What is his work? So we will see. He is the recognized as an all-rounder personality of the period of Renaissance. So this means what? So अगर रिफॉर्मेशन या रिक्रिएशन, अगर और वी कैन, हाँ, रिफॉर्मेशन रिक्रिएशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लियोनार्डो दा विंची का नाम आता ही आता है. ही वॉज द ऑल राउंडर पर्सनैलिटी. ही वॉज वेल वर्स्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस. तो वो डिफरेंट ब्रांचेस में, अगर साइंस रहे, आर्ट्स रहे, अगर कोई भी बात अगर हम करेंगे तो उसमें लियोनार्डो दा विंची का कोई ना कोई योगदान है. एंड ही हैज द मिस्ट्री ओवर द वेरियस सब्जेक्ट सच एज स्क्रिप्चर, the architecture, the mathematics, engineering, music, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा. तो ये जो सब्जेक्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर रहे, स्क्रिप्चरल रहे, मैथमेटिक्स रहे, या फिर इंजीनियरिंग रहे, या म्यूजिक, या फिर एस्ट्रोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट में लियोनार्डो दा विंची का कोई ना कोई आविष्कार है, कोई ना कोई उनका योगदान है. बट ही बिकेम द वर्ल्ड रिनोन्ड, ओके, नोन एज द पेंटर. लेकिन हम सब उनको हम सबको उनकी एक खास, जो बोलते हैं ना, एक स्पेशलिटी, उसकी वजह से वो फेमस हुए, वर्ल्ड वाइड फेमस हुए, दैट इज एज अ पेंटर. सो उनकी जो पेंटिंग है, मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, बिकम द इमोर्टल. मतलब वो इमोर्टल मीन्स व्हाट, कि दे आर फॉर एवर, दैट पेंटिंग्स आर फॉर एवर. वो कभी कोई भूल नहीं सकता. तो वी विल सी अबाउट दैट पेंटिंग, द मोनालिसा पेंटिंग. सर हाँ, बोलना. सर द लास्ट सफर जीजसची ते लास्ट मीलची पेंटिंग होती ना? हा, तेच मी सांगतोय. हे बघ, तेच मी हा. सांगत होतो की हे बघा, द मोनालिसा पेंटिंग अशी आहे. ओके, अँड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट सपर पेंटिंग अशी आहे. ओके, सो ह्याच्यामध्ये जीसस ख्रिस्ट जे लास्ट आपण बोलतो ना मील, हे शेवटच्या जेवणात होते, जेव्हा त्यांना हे आपण बोलू शकतो पनिशमेंट करण्याच्या आधी त्यांचा हा जो डिनर झाला होता, लास्टचं जे जेवण झालं होतं, त्यालाच लास्ट सपर असं म्हणतात. ओके, दिस इज वॉट. आणि दिस हॅपन इन जेरुसलेम. जो जेरुसलेम सिटीज मध्ये झालं होतं ते आपण बघूया. तो जर लास्ट सपर बद्दल तुम्ही अजून जाणकारी कराल तर तुम्हाला ते जाणकारी भेटेल. बट पेंटिंग वर फक्त आयडेंटिफिकेशन मी तुम्हाला सांगतोय. मोनालिसा पेंटिंग जर आपण बघितलं तर मोनालिसा पेंटिंग इज लाईक दिस अँड द लास्ट सपर इज लाईक दिस. ओके, आता आपण वळूया नेक्स्ट पॉईंट कडे, दॅट इज जॉग्राफिकल डिस्कव्हरीज. तर जॉग्राफिकल डिस्कव्हरीज पण असे कोणते कोणते होते
की जे एक स्पेशल वी कॅन से एक इम्पॅक्ट पडलेले असतात. अँड द एडी वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन एडी त्याचं फुल फॉर्म आहे ॲनो डॉमिनी. ओके, ॲनो डॉमिनी इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी वी आर टॉकिंग अबाउट. जसं आपण बोलतो बीसी फॉर बिफोर क्रिस्ट अँड एडी फॉर ॲनो डॉमिनी. ठीक आहे. So during the 15th century, the European sailors went on expedition to discover the new route to the India. We all know the India was the fully developed or एक मार्केटली इकॉनॉमिकली एक चांगला देश होता इंडिया पहिल्यापासून. सो दॅट्स वाय त्यांना इंडियासोबत ट्रेड करण्यासाठी, इंडियासोबत व्यापार करण्यासाठी त्यांना नवीन रस्ते शोधणे इम्पॉर्टंट असते. देअर वॉज अ नीड टू फाइंड आउट द न्यू रूट्स फॉर द इंडिया. Because the India was the very we can say the well developed country at that time. In the past, we can say. So in 1487 AD, we can see the Bartolomeu Dias, a Portuguese sailor, began his expedition in the search of India, but he reached to the tip of African continent, which we known as the Cape of Good Hope. ओके, सो हे तुम्हाला मी 3 आधी सांगतो आणि ते रूट्स कसे होते ते आपण नंतर बघूया. देन वी हॅव द 1492. In 1492 AD, the Christopher Columbus set his journey to the India by sailing towards the west, but reached the eastern coast of continent of America. Right. So if we go in the world map, so and then we will see if we go in the world map, then we will see the what was the route, and again we will see in 1498 AD, the Portuguese sailor Vasco da Gama managed his sail the pass to the Cape Hope and reached to the Indian coast in Calcutta. So Calcutta is the city. If we go and see in the world map, okay. So here is the world map. आपण बघूया त्याच्यामध्ये कोणते कोणते रूट्स कसे कसे आपण बघितले. तर क्रिस्टोफर कोलंबस मध्ये आपण सर्वात पहिले बघूया. क्रिस्टोफर कोलंबसने काय केलं होतं की वी ऑल नो की ही वेंट टुवर्ड्स द वेस्ट. सो हिअर इज अवर north, here is our east, here is our west, and here is our south. So right, so from here, so United Kingdom or we can say the Europeला हाच एक सी पॉइंट आहे. तर तिथून त्यांनी जशी जर्नी चालू केली, who Christopher Columbus we are talking about first. So he went to the west and he came to this side, so the eastern coast of America. तो या साईडला तो पहिले पोहोचला. Okay, so here is the this is the journey of Christopher Columbus. Then we have another journey is Dice. So Dice कसा पोहोचला असावा की तो पोर्तुगाल मधून निघून ओके तो केप ऑफ गुड होप म्हणजे हाच आपण बोलू शकतो आफ्रिकेच्या लास्ट पॉइंट पर्यंत द केप ऑफ गुड होप पर्यंत पोहोचला. अँड देन त्याच्यानंतर वास्को द गामाने सेम रूटला पकडून पुढे घेऊन त्याला परत पास करून then he come to the India through the Indian Ocean at this point. So why here? Because he reached to the Calcutta, and Calcutta is the we can say the city of Kerala. So that's why he come to this point. So this is how the route was. आपण त्यांचं रूट असं आपण बोलू शकतो. तो दिस इज हाऊ द रूट वॉज. सो अशा प्रकारचे रूट्स त्यांनी अप्लाय केले होते. अप्लाय केल्यापेक्षा आपण बोलू शकतो की त्यांनी आकारलेले होते आणि इंडियापर्यंत पोहोचलेले होते. ओके. So we will go for the next point, that is intellectual revolution in Europe. So ते रूट्स समजले तुम्हाला कशा प्रकारे ते रूट त्यांनी स्वीकारलेले. हॅलो, यस, रूट्स समजले. रूट्स कशा प्रकारे क्रिस्टोफर कोलंबस US ला पोहोचले, प्लस देन वास्को द गामा कशा प्रकारे इंडियाला पोहोचले. सो देअर वॉज द थिंग जे आपण बघितलं वर्ल्ड मॅप मध्ये. आता आपण बघूया इंटेलेक्च्युअल रिव्होल्युशन्स इन युरोप. Due to the changes during the Renaissance, during the Renaissance period, the Europe proceeded from medieval to modern age. Intellectual revolutions took place in the same period. The society are stepping out of the past ignorance and blind faith. ओके, सो तो ह्या पॅराग्राफ काय म्हणतोय. हा पॅराग्राफ असं म्हणतोय की हे बघा जे रिफॉर्मेशन होतं तर त्याच्या आधी कसं होतं. रिफॉर्मेशन घडताना म्हणजे रिफॉर्मेशन घडत होतं म्हणजे काय होत होतं मेडेलस पासून म्हणजे हॅलो
मिडल एज पासून म्हणजे मिड एरा होता. मिड एज पासून मॉडर्न एज मध्ये आपण जात होतो. ते स्टेप आउट करत होतो आपण. तर तेव्हा इंटेलेक्चुअल रिव्होल्यूशन टेक प्लेस करत होते. म्हणजे काही आपण बोलू शकतो, की वैचारिकच्या रिव्होल्यूशन, वैचारिकता रिफॉर्मेशन घडत होते. त्यांच्यामध्ये काय होत होतं, तो व्हॉट हॅपन्ड ओव्हर देअर, द सोसायटी वर स्टेपिंग आउट द पास्ट इग्नोरन्स अँड द ब्लाइंड फेथ, म्हणजे अंधश्रद्धा वगैरे आणि आपण बोलत होतो अडाणीपणा, या ज्या गोष्टी होत्या त्याच्यातून ते बाहेर पडत होते. त्याच्यातून ते शिक्षणाकडे वळत होते. The pre-establishment custom and the traditional came to scene to form the critical point of view. All these changes are addressed as intellectual revolutions and gave the further momentum to the specific discoveries in scientific discoveries in Europe. तर त्यांना काय म्हणत होतं, की जसं अडाणीपणा आणि अशिक्षितपणा ह्याच्यापासून ते जसे स्टेप आउट करत होते, जैसे ही वो अडाणीपणा पीछे छोड़ रहे थे, वैसे वैसे वो ज्ञान की तरफ, विज्ञान की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो जो अंधश्रद्धा था, उनको वो पीछे रख के आगे बढ़ने का जो प्रोसेस था और उसके लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसको ही उन्होंने इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन ऐसा नाम कहा है। Okay, so this is what the intellectual revolution and the revolution in the political sphere. Then we will know about the political sphere. Politically, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि politically उनमें कौन से changes आए वो हम लोग जान के लेंगे. In the early stage of beginning of modern period of Europe, and many political changes happens. Okay, so many political changes happen in the beginning of modern era of Europe. So what exactly happened, we will get to know. That took place due to the various revolutionary events during 18th and 19th as well as 19th century. The period is known as Age of Revolution. जैसा हमने कहा था कि 18 और 19th सेंचुरी में बहुत से रिफॉर्म्स आ रहे थे, बहुत से चेंजेस हो रहे थे, तो इसके लिए वो जो एज था उसको हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशन ऐसा कहा जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. सो उनके जो संसद था, जो उनका पार्लियामेंट था, उनमें बहुत सारे डेमोक्रेटिक मतलब लोकहितवादी और हम लोग कह सकते हैं डेमोक्रेटिक चेंजेस, दैट चेंजेस इज वी कैन से that it is useful for the people. That primary changes happens in that we can say the parliamentary democracy, and there was a changes in the form of cabinet system. The Bill of Rights 1689 laid limitations the power of king and sovereignty. The parliament was established. So उसका क्या मीनिंग है, जो बिल ऑफ राइट्स जो बिल है वो जैसे वहां पे एस्टॅब्लिश हुआ उस बिलने, क्योंकि म्हणजे आपण बोलू शकतो उस त्या कायद्याने काय केलं, त्या कायद्याने जो पॉवर ऑफ किंग आहे, जो आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पहिले इंग्लंडमध्ये किंग्स वगैरे म्हणजे सगळीकडे किंग्स वगैरे होते, तर ते किंग्स होते त्यांनी पॉवर कमी करून पार्लमेंटला पॉवर जास्त दिलं. पार्लमेंटचं सोव्हर्निटी वी कॅन से सार्वभौमत्व पार्लमेंटला केलं. म्हणजे ओव्हरऑल जे पण डिसिजन लोकहितवादी मीन्स the useful we can say the decision, whatever the useful decision can be take place is by the parliament instead of kings. वो जो बिल ऑफ राईट्स जो वहाँ पे म्हणजे स्थापित झाला होता त्याच्यानंतर पॉवर ऑफ किंग कमी झाली आणि वी कॅन से म्हणजे कमी नाही, लिमिटेशन्स त्याला आले आणि पार्लमेंटला जे संसद आहे त्याला जास्तीत जास्त पॉवर मिळण्यात आली. द सोव्हरेनिटी पण वॉज एस्टॅब्लिश. सो अशा प्रकारे तिथे काही घटना घडल्या. आणि नंतर आपण बघूया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स. विथ द बॅकग्राउंड ऑफ रिव्होल्युशनरी डेव्हलपमेंट इन युरोप, it is equally important to think about the American War of Development. This means what? जिस प्रकार हमें यूरोपीय के जो डेवलपमेंट हुए, रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट हुए, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हुए, जो कोई भी डेवलपमेंट जो यूरोप में हुए, वो जितना इंपॉर्टेंट है हमें जानना, उसी के साथ साथ अमेरिकन वॉर के बारे में ही जानना इंपॉर्टेंट है. With the discoveries of Americans, the European countries turns their attention towards this continent. तो हम लोग को पता है लाइक सी क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने मतलब जब भी उसका जर्नी इंडिया समझ के वजह से अमेरिका में पहुंचे थे, तभी उनका जो अटेंशन था, मतलब किनका, यूरोपियन का जो अटेंशन था वो अमेरिकन की तरफ ज्यादा बढ़ गया, मतलब बढ़ गया. देन दे स्लोली व्हाट दे डिड, emperors European countries to control the different region of American and establish their colonies.
व्हाट डज दैट मीन? उन्होंने क्या किया कि उनका जो अपना हम लोग बोल सकते हैं कि अमेरिकन की कुछ कुछ रीजन है उसको उन्होंने काबिज कर लिया, उसके ऊपर उन्होंने वर्चस्व किया, उनको पकड़ा, काबिज किया, और उसके ऊपर अपना जो हक था वो जताने लगे, राइट? सो इंग्लैंड एस्टेब्लिश्ड द 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट इंडिया। इंग्लैंड ने कुल मिला के 13 कॉलोनी अमेरिका में स्थापित किए थे। And initially, England had the normally domination over these colonies, but the later English Parliament laid oppressive restriction and taxes on these American colonies. What does that mean? This means कि स्टार्टिंग में अगर हम लोग जब कॉलोनी के बारे में देखेंगे तो कॉलोनी को उन्होंने कोणते म्यूट करा, कोणाचा तरी आवाज येतोय? गॅस म्यूट कर बेटा. हाँ गुड, तुझाच आवाज येत होता. सो उनको क्या कहना है कि जो इंग्लैंड ने अमेरिका में जो कॉलोनी स्थापित की थी, उन कॉलोनी स्थापित करने के बाद पहले वो नॉर्मली उनके ऊपर डोमिनेटिंग थे, नॉर्मली उनके ऊपर हक जता रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के, मतलब वी कैन से द ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शन एंड टैक्सेस वाज लेडिंग बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट। तो इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी वो अमेरिकन वसाहत के ऊपर तरह तरह करके टैक्सेस और ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन आ रहा था उसको पीपल ऑफ अमेरिका रिवोक अगेंस्ट इट। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट की ओर से अमेरिकन लोगों के ऊपर जो हम लोग बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे उनको उन्होंने रिवोक किया। एंड देन दे फाइट अगेंस्ट the fight against the England, or we can say the fight against the English people under the leadership of George Washington, and finally won against the England. So George Washington was the one to whom, under the leadership of George Washington, we can say the Americans won the fight against England, we can say. So this event is known as the American War of Independence. And after that, what happened? A new nation known as the United States of America. उसके बाद जो नाम रखा गया उस स्टेट का, उस जगह का, दैट इज कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विद द फेडरल गवर्नमेंट, और एक स्वतंत्र गवर्नमेंट विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका भी जो संविधान है वो लिखित स्वरूप में, एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और उन्होंने भी लोकशाही जो है डेमोक्रेसी उसका उन्होंने जतन किया, और वहां पे उसका जन्म हुआ था, वॉज बोर्न। तो इस प्रकार के उनके हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल जो चेंजेस आए थे अमेरिका में। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, और उसको उन्होंने नाम दिया था कि वॉर अगेंस्ट, सॉरी, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन वी हैव द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था वो हम लोग जान के लेंगे। जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। वो कैसे हम लोग देखते हैं। इन 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and the establish a republic। मतलब उन्होंने क्या किया था पता है क्या? उनके जो राजा महाराजा थे जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, राइट, मतलब फ्रेंच के जो राजा महाराजा थे जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे उनके अगेंस्ट फ्रेंच के नागरिक, मतलब फ्रेंच पीपल ने उनके ऊपर उनके अगेंस्ट एक आवाज उठाई, और उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी खुद की कंट्री को एक रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। खुद की कंट्री में उन्होंने तीन वैल्यूज उन्होंने स्थापित की, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। दैट मीन्स व्हाट? समानता मीन्स एक स्वतंत्र, सबसे पहले लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, and then equality means equality, we all know the samanta, and the fidelity we can say the सार्वभौम, no, वेटेस्कर भौतिक था, so means बंधुभाव, हाँ बंधुभावपना। so we can say so these three values was developed from the French Revolution। तो उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो वो जो आइडियोलॉजी बाहर आई इन थ्री वैल्यूज की, वो आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, so this is called the French Revolution। तो इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इम्पोर्टेंट है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री अमंग द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। देखो जैसे मैंने बोला था कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हमको जानना है तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैव बीन द इम्पोर्टेंट, हैव अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस। तो उनका इन दोनों घटनाओं का इम्पोर्टेंट प्लेस है हर एक चीज में। So this is what they think. We will see the industrial revolution right now in this chapter, and then the rise of capitalism we will see in the next period. So let's go for this. The industrial revolution in the later period of 18th century, there were the many technology innovations in Europe,
and there was the production with the help of machines running on steam. The cottage industries were replaced by the big factories, and the machines came to be used instead of handlooms. सो इन्हें क्या कहना है कि 18th सेंचुरी में बहुत सी हम लोग को कह सकते हैं की परिवर्तन आहे, आविष्कार वहाँ पे आए. म्हणजे बहुत सारी टेक्नॉलॉजी होती ते तिथं रिव्होल्युशनरी एक डेव्हलप झाली आणि त्यांचा शोध लागला आणि त्या टेक्नॉलॉजीच्या बेसिसवर जे मशीन्स आहेत किंवा आपण मशीन्स आहेत त्यांचा शोध लागला किंवा स्टेम इंजिन्स आहेत त्यांचा शोध लागल्यामुळे काय झालं की जे साधारणतः घरामध्ये जे प्रोडक्शन होत होतं ते एक फॅक्टरीमध्ये गेलं आणि फॅक्टरीज टूक प्लेस. सो हिअर वी कॅन से द कॉटेज इंडस्ट्रीज वेअर रिप्लेस्ड बाय द बिग फॅक्टरीज. सो त्याचे जे छोटे-छोटे आपण जे हे बोलू शकतो, जे छोटे-छोटे सामान बनवत होते, त्या जे बिग फॅक्टरी मध्ये कन्व्हर्ट होऊन ते मोठ्या प्रमाणात आणि जास्त प्रमाणात वस्तूंचं प्रोडक्शन होत गेलं. आणि the machines came to used instead of handlooms. म्हणजे माणसाच्या मॅन पॉवरपेक्षा वी कॅन से द मशीनची पॉवर ही जास्तीत जास्त यूज करण्यात आली. The railways and steamers became the mode of transportation. सो पहिले जसं बैलगाडी वगैरे आणि किंवा सायकल्स वगैरे अशा ज्या गोष्टी वापरत होते आपण बोलू शकतो ट्रान्सपोर्टेशनसाठी त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीडमध्ये railways and steamers became the mode of this transportation. And then this age of machine is known as the industrial revolution. And the industrial revolution began in England and the spread in other parts of west. During the period the England enjoyed the industrial prosperity and come to describe the word factory. सो इन सभी के वजह से जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसका जो बिगेन हुआ था उसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज इंग्लैंड. और इंग्लैंड से ही वो पूरे दुनिया में मतलब द पार्ट ऑफ वेस्ट वो स्प्रेड हुआ. सो जो जो कुछ भी बोलते एक न्यू रिवॉल्यूशन आया तो इंग्लैंड में आया था, इसीलिए इंग्लैंड को एक वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से डिस्क्राइब करने लगा, जाना जाने लगा. वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से इंग्लैंड को जाना गया. ठीक है, तो ये है आप अभी तक का आपका आज का लेसन और कल हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट.